اور ایف ڈی اے کی جانب سے غیر قانونی کالونیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، کالونیوں کے دفاتر بند، بنا این او سی لیے کی گئی تعمیرات کو بھی گرا دیا گیا۔ شہری بھی چھان بین کے بعد ہی پلاٹس خریدیں۔ ایف ٹی اے نے کارروائی کرتے ہوئے 2 غیر قانونی کالونیز کو تالے لگا دیے۔ انفورسمنٹ ٹیم نے سمندری روڈ اور ملحقہ علاقوں میں آپریشن کیا۔ 2 ہاؤسنگ سکیم سربا مہر کر دی۔ گلشن حبیب اور نیو گلبرگ ہاؤسنگ کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ہاؤسنگ سکیمز کے دفاتر کو فوری طور پر سیل کر کے تعمیراتی کام کو روک دیا گیا۔ ڈیولپرز کو تمام تر قانونی تقاضے پورے کر کے منظوری حاصل کرنے کی ہدایت کی۔ فیصل آباد ناولٹی پل انڈر پاس کا منصوبہ بجٹ سے کک آؤٹ۔ سمندری روڈ پر ٹریفک مسائل سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا، جبکہ میگا پروجیکٹ ناولٹی پل انڈر پاس کا منصوبہ نئے مالی سال میں نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب نے 81 کروڑ روپے کی لاگت سے منصوبے کی منظوری دی تھی۔ رمضان مرزا کی رپورٹ دیکھیے۔ 81 کروڑ روپے کا یک طرفہ انڈر پاس آغاز سے قبل ہی ختم ہو گیا۔ ناولٹی پل انڈر پاس کا منصوبہ بجٹ سے ہی نکال دیا گیا ہے۔ 2020 کے سالانہ ترقیاتی منصوبوں میں انڈر پاس کا 1 روپیہ بھی نہیں رکھا گیا۔ ٹریفک مسائل سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا میگا پروجیکٹ ناولٹی پل انڈر پاس ٹھپ ہو گیا ہے۔ یہ ناولٹی پل ہے، ادھر اگر انڈر پاس بن جائے تو ساری ٹریفک کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور یہ جو العزیز کے سامنے کاٹا ہے یہ بھی کھلنا چاہیے۔ انڈر پاس کی کافی ضرورت نے، اتنے کافی مسائل نے، ٹریفک جام ہو جاتی نے، اگر انڈر پاس اتنے بن جائے تو لوگوں کو بڑی سہولت ہوئے گی۔ 2019 میں 50 لاکھ روپے کی انتہائی مختصر رقم منصوبے کے لیے مختص کی گئی، مگر منصوبہ شروع نہ ہوا۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی کا کہنا تھا فنڈز نہ ہونے کے باعث منصوبہ شروع نہیں ہو سکا۔ اس وقت ہمارے پاس اتنی بجٹ میں سپیس نہیں تھی، جس کی وجہ سے بہت ساری جو ڈیولپمنٹ سکیمز تھیں ان کو ڈراپ کرنا پڑا۔ تو ابھی یہاں کے جو منتخب نمائندے ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے پروونشل گورنمنٹ سے بھی، فیڈرل گورنمنٹ سے بھی، تو اگر کوئی اسپیشل فیصل آباد کے لیے اس طرح کی ایلوکیشن آتی ہے تو اس میں ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ ہم اس کو انکلوڈ کر سکیں۔ تبدیلی سرکار نے سابق حکومت کے بیشتر منصوبوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ پنجاب حکومت کا تعلیمی سرگرمیاں بحال کرنے کے حوالے سے ایس او پیز جاری۔ سیکریٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ حکومت پنجاب نے تعلیمی سرگرمیاں بحال کرنے کے حوالے سے ایس او پیز جاری کر دیے۔ سیکریٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے مطابق کرونا وائرس متاثرہ شخص کے کھانسنے، چھینکنے یا بولنے کے دوران خارج ہونے والے ننھے ذرات سے پھیل سکتا ہے۔ تعلیمی اداروں میں چیزوں کا مشترکہ استعمال اور سماجی فاصلے کو برقرار نہ رکھنا اور کرونا وائرس کی وجہ بن سکتا ہے۔ کرونا وائرس کسی بھی عمر کے فرد پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ بچوں اور اساتذہ کے تحفظ کے لیے خاص احتیاط کرنا ہوگی۔ سیکریٹری پرائمری ہیلتھ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے اسکول انتظامیہ سے گزارش کی ہے کہ وہ بلا امتیاز ایسے سٹاف اور بچوں کو الگ کریں جو کرونا وائرس کا شکار رہ چکے ہوں۔ بچوں کو احتیاطی تدابیر سے متعلق آگاہ کریں، بالخصوص کسی بھی چیز کی سطح کو پکڑنے یا چھونے سے پرہیز کریں۔ اسکول میں بچوں کو بار بار ہاتھ صابن سے اچھی طرح 40 سیکنڈ تک دھونے کی تلقین کریں۔ اسکول میں بچوں کو آگاہ کیا جائے کہ وہ گھر پہنچنے پر دیگر اہل خانہ سے میل جول کرنے سے قبل نہائیں، بغیر ہاتھ دھوئے آنکھوں، ناک اور منہ کو چھونے سے مکمل پرہیز کریں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے 1000 سی سی سے بڑی گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس کی کیش وصولی بند کر دی ہے، جبکہ ٹوکن ٹیکس صرف ای بینکنگ کے ذریعے ہی ادا کیا جا سکے گا۔ عمیر عصمت کی رپورٹ دیکھیے۔ معیشت کو ڈیجیٹلائزیشن کی جانب لے جانے کے لیے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے تمام کمرشل گاڑیوں کی پراپرٹی ٹیکس کی کیش وصولی روک دی، جبکہ 1000 سی سی سے بڑی گاڑیوں کا ٹوکن ٹیکس بھی اب روایتی طریقے سے ادا نہیں ہو سکے گا۔ انقلابی اقدامات گورنمنٹ نے کیے ہیں، وہاں ایک یہ بھی ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے پروگرام کیا ہے انہوں نے کہ کیش کلیکشن جو ایم بی ٹی کی وہ بند کر دی گئی ہے۔ اب ای پیمنٹ کے ذریعے آپ کمرشل گاڑیز کا، وہیکلز کا ٹوکن ٹیکس ادا کر سکتے ہیں۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن حکام کے مطابق گاڑیوں کا ٹوکن ٹیکس ای پیمنٹ کے ذریعے ہی ادا کیا جا سکے گا۔ اس حوالے سے خودکار آن لائن نظام تشکیل دے دیا گیا ہے۔ ٹیکس گزار گھر بیٹھے اپنے موبائل فون سے آن لائن ٹوکن ٹیکس جمع کروا سکیں گے۔ کمرشل وہیکلز ہیں، چاہے وہ 1000 سی سی سے کم ہیں یا زیادہ ہیں، وہ ای پیمنٹ کے ذریعے دی جائے گی۔ اس سے عوام کو دفتر کے چکر لگانے، لائن میں کھڑے ہونے اور ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
एक क्लिक पे अपने घर बैठे ऑनलाइन इससे फ़ायदा ले सकते हैं। टैक्स गुजारों को ई पेमेंट के जरिए अदायगी पर 5% छूट भी दी जाएगी। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए बड़ी खबर है। अब इंडस्ट्री से जुड़े सनतकारों को DLTL क्लेम्स और रिफंड्स बराह रास्त मौसूल होने की सहूलत दे दी गई है, जबकि एक्सपोर्ट DLTL रिफंड्स अब एक्सपोर्टर्स के अकाउंट में बराह रास्त मुंतकिल किए जाएंगे। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में पाकिस्तान फुजूल मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन काशिफ ज़िया कहते हैं कि हुकूमत के इस कदम को सराहते हैं जो कि एज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए उठाया गया है। उम्मीद करते हैं कि DLTL रिफंड के हसूल में तमाम रुकावटें खत्म होंगी। आगे फाइलें जो रुक जाती थी टेबलों के ऊपर, उसका प्रोसेस कम से कम हो और डिजिटल करके, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। और गवर्नमेंट जो है, जो हमारा जो मुतालबा होता था कि हमारे पैसे गवर्नमेंट की तरफ जाके फंस जाते हैं, उसके लिए उन्होंने एक डिसीजन लिया कि इसको डिजिटल करके डायरेक्टली हम इसको ट्रांसफ़र करें। इन्होंने कहा कि रिफंड अप्लाई करने से लेकर जारी करने तक के अमल को फाइलों की जगह डिजिटलाइज कर दिया जाए तो मामलात में मजीद आसानी पैदा होगी। अगर गवर्नमेंट इसको डिजिटल कर दिया जाए, जिस तरह के सेल टैक्स का 17% के जो हमारे रिफंड का प्रोसेस है कि वो ऑनलाइन ही हम अप्लाई करते हैं और ऑनलाइन ही पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। अगर DLTL का भी इसी तरह केसेस अगर हम ऑनलाइन अप्लाई करें और ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र हो तो वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ एक और गवर्नमेंट का कदम होएगा, जिसके ऊपर हमारी रज़ाक दाऊद साहब से बात भी हुई है। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स का कहना है घुमा फरा कर बैंकों के जरिए फंड जारी करने की बजाय अब बराह रास्त DLTL वसूल होंगे, जिससे कारोबार का पहिया किसी रुकावट के बगैर चलता रहेगा। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम का अमन व अमान के क़याम में भरपूर किरदार अदा करने का अज़्म, इंतजामिया का सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम का फैसला। जुलूसों के रास्ते में मजहबी हम आहंगी के लिए इकदाम पर जोर दिया। मोहम्मद रमजान मिर्जा की ये रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली और CPO फैसलाबाद कैप्टन सुहेल चौधरी ने उलमाए कराम से मुलाकात की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर अयूब बुखारी और उमर मकबूल भी मौजूद थे। मुहर्रमुल हराम के अयाम तकद्दुस के साथ हसास हैसियत के हामिल हैं, जिनके दौरान इंतहाई ज़िम्मेदाराना और मोहतात तर्ज अमल की जरूरत है ताकि अमन कायम रखा जा सके। मौलाना मोहम्मद यूसुफ अनवर, साहबजादा जाहिद महमूद कासमी, साहबजादा फैज रसूल रिजवी, मुफ्ती मोहम्मद ज़िया मदनी, मौलाना मोहम्मद रियाज खर, हाफिज मोहम्मद अमजद व दीगर भी शरीक हुए। उन्होंने कहा कि वो अमन में किसी को खलल नहीं डालने देंगे। इस मौका पर यूनुस रिजवी, मौलाना मोहम्मद आजिम फारूक, मोहम्मद हफीज खान व दीगर उलमाए कराम भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, फेस्को सारिफिन के लिए अच्छी खबर है। लो वोल्टेज और ओवरलोडिंग के मसाइल पर काबू पाने के लिए 66 kV के मोस्तकिल और 132 kV के चीना ग्रिड की तामीर 9 का काम मुकम्मल कर लिया गया। नए ग्रिड्स की तामीर पर 52 करोड़ रुपए की खती रकम खर्च की जाएगी। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से 66 kV के मूसाखेल और 132 kV के चीना ग्रिड स्टेशन पर तामीर 9 का काम मुकम्मल कर लिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ज़रे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के माहिरीन ने बायोफ्लॉक एक्वा कल्चर सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। इस हवाले से जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट। अब मछलियों की फार्मिंग करने के लिए बड़े बड़े तालाब और भारी सरमायाकारी की जरूरत नहीं, क्योंकि कम लागत से भी माही परवरी की जा सकेगी। ज़रे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के माहिरीन ने बायोफ्लोक एक्वाकल्चर सिस्टम मुतारफ करवा दिया। माही परवरी के लिए ज्यादा रकबे पर फैले मछली के खुले तालाब की जरूरत नहीं, सिर्फ एक मरला रकबे पर 6500 लीटर पानी की 3 प्लास्टिक पोन्ड्स में मछलियों की परवरिश हो सकेगी। माहिर फिशरीज डॉक्टर अब्दुल मतीन कहते हैं, एक सीजन में 18 मन से जायद मछली पैदा की जा सकती है। एक्वाकल्चर यूनिट में आम तालाब के मुकाबले में कम रकबा, कम पानी और खुराक की 40% बचत मुमकिन होगी। सिर्फ 25,000 रुपए में तैयार होने वाले 10 फुट कुतर के प्लास्टिक पोन्ड्स को 10 साल से जायद अरसा तक इस्तेमाल किया जा सकेगा। बायोफ्लैक टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में जो एक्वाकल्चर के रेफरेंस एडवांस कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, बांग्लादेश है, इवन कि इंडिया में भी हो रही है। हमारे मुल्क में चूँकि अभी ये बड़े पैमाने पे नहीं हो रही, बल्कि और पर्टिकुलरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च के रेफरेंस है, ये हमारी यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट स्टेप लिया है हमने, ताकि हम इसको अपनी लोकल कंडीशन के मुताबिक इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकें।
ज़रूरी माहिरीन कहते हैं टेक्नोलॉजी के जरिए मछली के रवायती तालाब से बहुत कम रकबे, सरमाए और खुराक से तैयार होने वाली मछली मार्केट में लाएंगे। पैदावारी लागत बहुत कम होने से इस कारोबार से वाबस्ता अफराद का मुनाफा बढ़ाया जा सकेगा। तो ये श्योरली हमारे मुल्क की इकॉनमी के लिए, फिश फार्मर की हम ये कहेंगे इनकम के लिए और ओवरऑल पूरे मुल्क के लिए ये एक बहुत अच्छी बात होगी अगर हम बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी को बड़े अच्छे तरीके से और साइंटिफिक बेसिस पे अडॉप्ट करेंगे। बायोफ्लॉक एक्वाकल्चर को कम खर्च बाला नशीन कहा जाए तो बेजान ना होगा, क्योंकि छोटे से तालाब में सिर्फ 6000 लीटर पानी से एक सीजन में मछली की 6 मन तक पैदावार हासिल की जा सकती है। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। मजीद आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद रियाज ने DHQ अस्पताल चनियोट के शेल्टर होम का दौरा किया और सहूलियत का जायजा लिया। छत की हालत बेहतर करने और तज़य्युन और आराइश करने की हिदायत जारी की। राना अजहर नूर की रिपोर्ट देखिए। कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने DHQ अस्पताल शेल्टर होम का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर चनियोट आयशा यासीन भी हमरा थी। MSDHQ और SDO बिल्डिंग में DC को ब्रीफिंग थी। DC ने पनाहगाह में दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। पनाहगाह में आने वाले मरीजों के लिए बेहतर इंतजाम करने की हिदायत की गई। उन्होंने कहा कि दाखिली रास्तों को बेहतर और दरवाजों को रंग करवाया जाए। पनाहगाह जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, जिसको पंजाब गवर्नमेंट ने भी अडॉप्ट किया और डिस्ट्रिक्ट चनियोट के अंदर हमने 3 पनाहगाह इस्टेब्लिश की हैं और वो सारी की सारी शुरू से फंक्शनल हैं। उसमें एक हमारी DHQ चनियोट के अंदर इस्टेब्लिश है, जिसमें कम से कम जो है 30 से 40 लोगों की मेल और फीमेल दोनों साइड पे गुंजाइश मौजूद है। DC ने शेल्टर होम में रहने वालों को खाने समेत तमाम इंतजामात बेहतर करने की भी हिदायत की। DC ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की कि अस्पताल में आने वालों से हुस्न सलूक से पेश आया जाए। शेल्टर होम का भी मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। कैमरामैन अली जेब के हमरा, राना ज़नूर, सिटी 41 चनियोट। फैसलाबाद में माह सितंबर में कातिल मच्छर के हमले का खदशा है। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत की है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखें। फैसलाबाद में कातिल मच्छर के हमले का खदशा। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सेहत, तालीम, माहौलियात, वासा, ट्रांसपोर्ट कंपनी, PHA और TMA अफसरान को हफ्ते में 3 मरतबा मीटिंग्स करने की हिदायत कर दी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना था कि गुज़िश्ता साल भी सितंबर में डेंगू के बहुत ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए थे, इसलिए तमाम महकमों को डेंगू के खिलाफ इक़दाम करने की हिदायत की गई है। फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का असिस्टेंट कमिश्नर सिटी और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के हमरा अमीन टाउन सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी का दौरा। इंसाद पोलियो मुहिम से मुताल्लिक जारी ट्रेनिंग का जायजा लेते हुए नातजुर्बाकार मुलाजमीन को कल का दिन भी ट्रेनिंग करवाने की हिदायत कर दी। 15 अगस्त से जिला भर में इंसाद पोलियो मुहिम मनाई जा रही है, जिसमें 13,50,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। अक़लियतों के आलमी दिन की मुनासबत से जिला इंतजामिया टोबा की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। सिख, मसीही, हिंदू अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। इस हवाले से वकार घुमन की रिपोर्ट। जिला कौंसल हाल टोबा में अक़लियती दिन के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर, DPO राना उमर फारूक, रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी अशफाक, असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक पूरी, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर इकरा रिजवान समेत मजहबी अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वालों ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि हमसाया मुल्क की तरह अक़लियतों के साथ नारवा सलूक नहीं रखा जाता। पाकिस्तान में अक़लियतों को मजहबी आज़ादी समेत तमाम हकूक़ हासिल हैं। ये जो मुल्क है ये हासिल किया गया था ताकि तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ पे ख़ास तौर पे मुसलमान अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। यहाँ पे हमारे साथ माइनॉरिटीज़ में भी लोग थे और इस दिन को मनाने का मकसद ही यही है कि पाकिस्तान ये दुनिया में बावर कराना चाहता है कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के हकूक़ का बुनियादी तौर पे बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता है। जिस तरह के हमारे हमसाया मुल्क में जिस तरह की अंदरनाक किस्म के तशद्दुद के वाक़या सामने आ रहे हैं, ख़ासकर कश्मीर में, अगर हम उसको मद्देनज़र रखें तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी है। मुशीफ जॉन स्मिथ का कहना था कि हुकूमत के मशकूर हैं जो अक़लियतों का खास ख्याल रखते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी अशफाक का कहना था कि पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ हर किस्म का ताउन किया जाता है। मैं क्योंकि नाज़र भी जाऊँगा, मैंने उस वक्त भी मैंने आपके लिए आपके जो राइट थे वो दिए। जहाँ आपने कहा कि डेवलपमेंट चाहिए, जहाँ आपको जरूरत थी, अब भी आपकी जो बस्तियाँ हैं वहाँ पे जैसा काम दूसरे महलों में होता है इसी तरह इन महलों में इन बस्तियों में होता है। कि वो तकरीर है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये मुल्क सब के लिए है। जो क्रिश्चियन हैं अपने गिरजाघरों में जा सकते हैं, जो मुस्लिम हैं अपने मसाजिद में जा सकते हैं, जो हिंदू हैं अपने मंदिरों में जा सकते हैं, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। तकरीब के अख्तिताम पर अक़लियतों के आलमी दिन की मुनासबत से केक भी काटा गया। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ वकार घुमन, सिटी 41 टोबा टेक्सी।
लेकिन ब्रेक से पहले आपको बताएं कि कोरोना के बायस पंजाब की मुअत्तल सरगर्मियां बहाल। पंजाब के रिवायती सकाफती खेल और सरगर्मियां बहाल होने के बाद चिन्यूट में पहला घोड़ा डांस मुकाबला नवाही इलाका कोट सरवर में हुआ। कोरोना के बायस मुअत्तल सकाफती और तफरीही सरगर्मियां बहाल तो चिन्यूट की कदीमी रौनक घोड़ा डांस के शौकीन के चेहरे भी खिल उठे। नवाही इलाके कोट सरवर में मुनक्किद होने वाले घोड़ा डांस मुकाबले में पंजाब भर के घोड़ा डांस शौकीन उमड़ा। इस प्रोग्राम में डांस के लिए घोड़े भी। पंजाब के पहले घोड़ा डांस मुकाबले में बेहतरीन शाह सवारान अपने घोड़े पप्पू, काला, कांटा, रहमत, मासूम, बादल, कालीचरण, लिब्रा, हैदर वगैरह से ढोल और शहनाइयों की धुन पर डांस कराया। अवाम भी अपने पसंदीदा डांस करने वाले घोड़े पर नोट निछावर करती नजर आए। 24 घंटे जारी रहने वाला घोड़ा डांस में मुकाबले में 50 घोड़ों ने हिस्सा लिया। अवाम का कहना था कि इस तरह के सकाफती प्रोग्राम हुकूमती सतह पर मुनक्किद कराए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा अपनी सकाफत से रोशनास हो सके। कैमरा टीम के साथ अजमत बलोच, सिटी 41, लालिया। फैसलाबाद के मारूफ खतात कमर सुल्तान ने कुरान पाक के मुकम्मल हरूफ के साथ पाकिस्तान का नक्शा बना दिया, जबकि नक्शे में कश्मीर को भी शामिल किया। हजारों लफ्जों से भरा पाकिस्तान का झंडा और नक्शा लोगों की तवज्जो का मरकज है। पाकिस्तान की आज़ादी को 26,590 दिन बीत गए। आलमी शोहरत याफ्ता खतात कमर सुल्तान ने 26,590 दफा कलमा तैयबा लिखकर पाकिस्तान का नक्शा परो दिया। कमर सुल्तान का कहना है कि आज़ादी के दिनों को नज़र में रखकर नक्शा बनाया गया। 7 साल पहले मैं इसको लिख चुका था और आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर समेत लिखा था। तो उस वक्त बहुत से लोगों ने ये कहा था कि भी ये मुनासिब नहीं है, ये हमारा नहीं है। लेकिन अब जो लेटेस्ट हमने पार्लियामेंट ने कानून नक्शा जो मंसूख कर लिया है, तो मेरे लिए ये अब ये बेनिफिट्स हो गया कि भाई ये कुरान पाक भी मेरा हाईलाइट हुआ। कमर सुल्तान का कहना था कि पाकिस्तानी झंडे में खास तौर पर कश्मीर को भी शामिल किया गया है। वो 14 अगस्त पर झंडा सदर पाकिस्तान को पेश करना चाहते हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शाद आ गया, तो अब मेरी ख्वाहिश है कि ये जो है नक्शा जो इसमें मैंने 26,590 मरतबा कलमा लिखा है, ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस 14 अगस्त पर सदर पाकिस्तान को ये गिफ्ट करूँ। कमर सुल्तान का मजीद कहना था कि नक्शे की तरह हकीकत में भी कश्मीर जल्द पाकिस्तान का हिस्सा होगा। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ हन्नान बुखारी, फैसलाबाद। पंजाब आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद में 14 अगस्त के हवाले से तकरीबात की तैयारियों का अमल शुरू कर दिया गया। हन्नान बुखारी की ये रिपोर्ट देखिए। 14 अगस्त की तैयारियों के हवाले से पंजाब आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद पेश है। मुख्तलिफ सिंगर्स की जानिब से मिले नगमों की रिहर्सल की गई। डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल सोफिया बेदार का कहना था कि 14 अगस्त पर बेशुमार इवेंट्स होंगे, रंगारंग तकरीबात मुनक्किद होंगी ताकि हम जिंदा दिल कौम होने का सबूत दे सकें। 14 अगस्त के प्रोग्रामों की है तो हम ये समझते हैं कि बाबाई कौम कायद आज़म ने जो हमें तोहफा दिया, कश्मीर की जिद्दोजहद की रोशनी में और भी ये खुलकर सामने आता है कि किस कदर तकलीफ में हम होते अगर हमें ये आज़ादी ना मिली होती। डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल सोफिया बेदार का कहना था कि पाकिस्तान ता क़यामत कायमो दायम रहेगा। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ हन्नान बुखारी, फैसलाबाद।